Good evening, everyone. I hope you all are well. So, today onwards, we will discuss some questions, especially the objective questions. Let's start with the chapter 7 Changing Culture and Traditions. In this video, we will discuss only MCQs, and in this video, we will not only discuss these particular MCQs but also we will discuss that how to tackle objective questions. Okay, so without wasting our time, let's start from question first and one by one. Okay, be with me, and I will try to make a not a so lengthy video, but I think the things are all things are compulsory, so we will have to discuss in order, slowly and steady. Okay, so let's start with question number first. The first question is assertion and reason type of question. So the assertion is Italian cities revived in 12th century, and the reason is trade between Islamic countries and Byzantine Empire helped in revival of the cities. So first of all, we have to know that is assertion and reason both are right or not. So according to our textbook, our syllabus, we know that the Italian cities were revived in 12th century only after the decline of Roman Empire. So the assertion is correct. And what about the reason? Trade between there were several reasons of revival of these cities. Among them, the trade between Islamic countries and Byzantine Empire was one of them. So the reason also right, and the assertion and reason both are right, and the reason is the correct explanation of assertion is correct answer. So the correct answer is option, sorry, it's option A. Okay, now coming on next question, which is Florence and Venice both were republics. Florence was republic, Venice was republic, or neither was republic. So first of all, we need to know that Florence and Venice are both cities are having same kind of governance or different. If there was a same kind of governance in Florence and Venice, so it would be quite easy to tackle this question, because we know that option B and option C will be wrong, because Florence was republic or Venice was republic तो हो ही नहीं सकते. So अगर हमें पता है, if we know that कि Florence and Venice are having a separate or maybe same governance, so let's move on the options one by one. The first option is both were republics. Okay, were they both republics? Second is Florence was republic, was only Florence republic. Venice was republic, was Venice only republic, and neither was republics. So we know that during Renaissance, after the fall of the Roman Empire, during the revival of the Italian cities, Florence, Venice, and third one, Genoa, were republics. So option A would be the right answer. Okay, coming on next question, match the following. Okay, this is very important kind of a question, and we need to be very careful to tackle these kind of questions. So first of all, let's read the question carefully. The question is match the following type of question. So there are two things. One is ages, it means
the periodization of a history, and second one is their time period. Okay, so the first periodization is a dark age, second periodization is a middle age, third period early middle age, and the third periodization is a late middle age, and fourth periodization is a modern age. Okay, let's check their options. One second. So the dark age considered from 5th to 9th century? Was dark age considered early middle age considered from ninth to 11th century? Was late middle age considered from 11th to 14th century? And was modern age was considered एक सेकेंड फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स? तो हमें बस इसमें पता करना है कि कौन सा मैच करेगा इसमें से इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर हमको ना इफ़ वी नो अबाउट 2 और 3 ऑप्शंस ओनली, हमें सिर्फ 2-3 के बारे में ही पता है इनमें से, ये जितने भी दिए हुए हैं इनमें से अगर हमें सिर्फ 2-3 के बारे में भी पता है इन सब में से, तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज डार्क एज, वी नो दैट द डार्क एज was considered from 5th to 9th century. Okay, so dark एज इज़ अ नंबर ए. डार्क जो है यहाँ पे वो नंबर ए पे दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिख रहा है सिंपली. ठीक है, नंबर ए पे दिया हुआ है डार्क एज, एंड नंबर ए पे ही डार्क एज है, और के सामने जो इसकी मैचिंग है वो 5th to 9th सेंचुरी फर्स्ट है. तो हमें यहाँ पर कहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखना है कि ए से किसके साथ मैच हो रहा है 1 का, और ए के साथ जो 1 मैच कर रहा है वो सिर्फ ऑप्शन ए ही कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस द ए वुड बी राइट आंसर. बट फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन होते हैं वो इतना इजी ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत इजी हैं. बिकॉज ए इज़ अ मैचिंग विद 1 इन ओनली ऑप्शन. ए जो है वो 1 के साथ सिर्फ ऑप्शन ए में ही मैच कर रहा है. तो जब ये अलग अलग मैच कर रहे होते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन को टैकल करना मुश्किल हो जाता है. चलिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं. बी के बारे में चलते हैं. बी सेकंड से यहाँ पे मैच कर रहा है. ऑफ कोर्स तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत है नहीं, और वी नो दैट आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ इनकरेक्ट. ओके, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल in these kinds of questions. Remember one thing, we have to pick out incorrect sentence. It means among the 4 options which one is wrong sentence is our correct answer. I think you are getting my point. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शंस में से हमें बताना ये है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि टोलमी ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, व्हाट रोट मी टोल. ओके, एक ऑप्शन हमारे पास ये 4th है. इसके अलावा वी हैव एन ऑप्शन नंबर 3rd एंड ऑप्शन नंबर 2nd. ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, और you have to solve these options. Okay, चलिए. So the first option is Ptolemy wrote medical encyclopedia. Second option is Ibn Sina was an Arabian physician and philosopher. Third option is Ptolemy wrote Almagest. And the fourth option is Ibn Rushd was an अरेबिक फ़िलासफ़र ऑफ स्पेन. तो इन ऑप्शंस में से जो स्टेटमेंट
जो सेंटेंस गलत है वही हमारा सही आंसर है। तो इसमें से गलत कौन सा है? वी नो दैट मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया वॉज नॉट रिटन बाई टॉलमी। टॉलमी ने क्या लिखा था? अल्माजेस्ट। ठीक है, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया टॉलमी ने नहीं लिखा था। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑफकोर्स ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ये देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रियास वेसालियस वॉज द मेडिकल प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डायसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अब हमें बस बताना ये है कि क्या बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, क्या दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, या फिर ओनली वन जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, या फिर ओनली जो बी सेंटेंस है वो करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है। तो वी नो दैट एंड्रियास वेसिलियस वॉज द मेडिकल प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ। ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। वो मेडिकल प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, मिस्टर एंड्रियास वेसालियस। और यही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया था, यानी कि पोस्टमार्टम किया था अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन अरेबियन who was known as Aflatun. Okay, among the 4 names which are Plato, Dante, Angel and Aristotle, which one was known as Aflatun in Arabian? तो इन चारों में से अरेबियन में अफलातून के नाम से किसको जाना गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना गया है। ओके, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे वीडियोस लेंगे, मिनिमम नंबर जो है क्वेश्चन से हम रखेंगे 8, 9, 10, और बिकॉज वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज, तो आई थिंक 2 से 3 वीडियोस जिसमें से 25 to 30 मल्टीपल क्वेश्चंस पर चैप्टर हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत होंगे, इतना काफ़ी है। इसके बाद वी विल डिस्कस सम वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन शॉर्ट आंसर्स, some source based questions, and some long answers, and their strategies, their number of words, their word limits and their formations। तो किस तरीके से हमें हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर इन अ वेरी इफ़ेक्टिव वे, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, बट अभी फ़िलहाल ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सो द कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, पेंटिंग मोनालिसा वॉज पेंटेड बाई, हु पेंटेड द पेंटिंग मोनालिसा? हाँ, चलिए ऑप्शंस, लियोनार्डो दा विंची, डोनाटेलो, राफेल या फिर मिशेल एंजेलो। तो ये फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ में हिस्ट्री के सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए दैट मोनालिसा वॉज पेंटेड बाई लियोनार्डो दा विंची। ओके, सो versatile personality of the history, okay, multi-talented person. Leonardo da Vinci was the singer, painter, sculptor and historian, philosopher and many more. ये एक अकेला कैसा करेक्टर है which I like most. Okay, now coming to the next question, question number 8, who was the author of The Prince? The Prince बहुत ही फेमस बुक है, फ़िलासफ़ी या फिर फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हम कह सकते हैं, हालांकि उसको सोशलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में भी इंक्लूड कर लिया जाता है, और हिस्ट्री में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो किसने इसको लिखा था? द ऑप्शंस आर गुटेनबर्ग भाई साहब ने लिखा था, या फिर लोरेंजो वल्ला ने लिखा था, केपलर ने लिखा था, या फिर न्यूटन ने लिखा था। तो द प्रिंस is written by, according to options, I think all options are wrong. इसके सारे options wrong हैं, because I know that the prince is written by Machiavelli ने द प्रिंस को लिखा था। इसमें जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, बट ये क्वेश्चंस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग
आई थिंक जो ऑप्शन ए है वो सही दिया हुआ है, जहाँ से भी ये क्वेश्चन मैंने लिया है, बट ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, बिकॉज द प्रिंस इज रिटन बाई मैकियावेली। ओके, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रार्क वाज गिवन अ टाइटल ऑफ द पोएट लॉरेट। जो रोम है, रोम में पेट्रार्क को पोएट लॉरेट का जो टाइटल है वो किस वर्ष में दिया गया था? इन विच ईयर पेट्रार्क वाज गिवन अ टाइटल ऑफ पोएट लॉरेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1341, 1342, 1343 एंड 1344। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, Almagest of Ptolemy was work on. Options are astronomy, sociology, mathematics and philosophy. जो टॉलमी की अल्माजेस्ट जो उसका जो वर्क है, उसकी जो बुक है, वो इनमें से किस टॉपिक पे लिखी हुई बुक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, एस्ट्रोनॉमी की ये बुक है। इसलिए ऑल द बेस्ट। ये जो अभी जो मैंने वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये एनुअल एग्ज़ाम्स, टर्म्स एग्ज़ाम के अलावा, क्योंकि ये द वीडियोस आर चैप्टर वाइज, so that these would be helpful for the unit test, periodic test, क्लास टेस्ट, इवन इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म टेस्ट जो होते हैं या फिर ओरल टेस्ट जो होते हैं, इस तरीके के टेस्ट में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब हम इसको एक कंबाइन कर लेंगे पूरा एक सिलेबस हमारा नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को इंक्लूड कर लेने के बाद में, तो ये पूरा का पूरा हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, टर्म के एग्ज़ाम्स में, हालांकि टर्म्स के एग्ज़ाम में से फर्स्ट टर्म में तो ये इंक्लूड होगा नहीं, ये चैप्टर 5th चैप्टर है, क्योंकि देर आर टोटल 7 चैप्टर्स इन 11th हिस्ट्री, और जिसमें से टर्म 1 में अगर हम 4 चैप्टर्स भी लेते हैं तो ये चैप्टर जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बट यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में या फिर क्लास टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी चैप्टर की हम कोशिश करेंगे, अभी हमने 10 क्वेश्चंस को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, and I will try to discuss 20 to 25 more questions, objective questions, and then we will move to very short answers, case based, source based questions as well. Okay, even long answer वो बहुत important है, long answer में जो है वो complete marks, full marks मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।